ओके गाइस, नाउ आपका एक क्वेश्चन करते हैं, द टफ वन। आई गेस यू आर फीलिंग दैट। ओके, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस। ओके, मैं क्वेश्चन ही कॉपी कर saying something like this: write a program to calculate the length of a string without using a length function, right? So you don't have to use the length function. So simply it is like this. If I am saying that my word is, like, say I am say object, right? So what is the length of this object? Obviously 1 2 3 4 5 and 6. That is the length is here 6, right? Suppose if I did the world, what is length here? 1 2 3 4 5, right? That length you have to find. So right, so you can say, sir, we will do something like this. Suppose we will say print simply length of world, right? And this will give you the output as 5, right? Simply let's check it. I'll write something like this: print length of world, right? If I will be running it, the output you are getting is 5, right? But the question is saying itself that you can't use a length, right? You can't use a length. So what you can do is, you are having the other ways we have to find. If you know, then you know what you know. If you know if you have watched my previous video, then you will be knowing what logic will be getting here. Since we are not allowed to use this length, so how we can check the world, right? So can we do something like this? Like, can we iterate over this string? That means first time we'll be checking, okay, w we are having, that means one character came. Then we will check, oh, he is having, that means second character came. Then we will check r is having, then we can say, okay, third character came. Then we will check l is having, okay, we can say fourth character came. Then we will check d is having, that means fifth character we got, right? That means, can we iterate over this word character by character, then we can say, okay, we got our count, right? So how we'll be writing it, let's see. Let's take, we are writing the program over here. So I can say something like this: for I in a, मेरे a में क्या present है? This world is present in my a, right? So if you know here, after every iteration, this I will have initially what value? 0 or 1? No, wrong, it will have w, right? In a second iteration, this I will have what value? O. In a third iteration, this I will have r value. In fourth iteration, what this I will have? L value. In fifth iteration, what this I will have? D value, right? This is how we can take that. When I is having the first value w, then we can say, okay, एक कैरेक्टर तो हमें मिल गया. सेकंड आइटरेशन में फिर से आएगा, वो ओह मिला तो हम बोलेंगे दूसरा कैरेक्टर आ गया, दो कैरेक्टर हो गए. तीसरे आइटरेशन में आर देगा हमें तो हम बोलेंगे तीसरा कैरेक्टर आ गया. चौथी आइटरेशन में it will say L, okay, we will give fourth value got, right? Then in the last iteration it will give us a D. Then हम बोल सकते हैं भाई इसका जो लेंथ है वो 5. गेटिंग दिस पॉइंट? एंड ये आई हमें एक साथ नहीं दे रहा है, ये ना एक एक करके दे रहा है, एक एक कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर, राइट? सो हमें क्या करना है, जैसे भी कुछ वैल्यू आया तो हम ना उसको सम करेंगे. या मैं बोलूँगा एक वेरिएबल है मेरे पास काउंट, राइट? इनिशियली जब हमने इसको देखा ही नहीं है तो इनिशियली इट विल बी 0. मीन्स कि आप ऐसे समझ सकते हो इसको, हम ऐसे कर लेंगे. जब मेरा 1 था तो जो भी काउंट था 1 + 1 2 बन गया. अब मेरे पास 2 है, जैसे ये आया तो आप बोलेंगे 3 हो गए. मीन्स 2 + 1 3 हो गए, राइट? फिर से आ जाएगा तो हम एक और कैरेक्टर आए तो हम 4 बोलेंगे, राइट? फिर से आ जाएगा तो हम बोलेंगे 4 + 1, अब 5 कैरेक्टर हो गए, राइट? बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ काउंट प्लस इक्वल टू 1. एज आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, दिस काउंट प्लस 1 इज समथिंग लाइक दिस: काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, राइट? सो लेट्स सी हियर, जब मैं बोल रहा हूँ a इक्वल टू वर्ल्ड, ये तो ठीक हो गया. अब मैं बोल रहा हूँ फॉर i इन a, नाउ इनिशियली व्हाट विल बी माय i वैल्यू? कैन एनीवन टेल मी इनिशियली व्हाट विल बी i वैल्यू? यहाँ तो बोल दिया इनिशियली मेरी i की वैल्यू 0 या 1 नहीं होगी, मेरी i की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? w, राइट?
करेक्ट। क्या हम बोल सकते हैं अब एक कैरेक्टर आ गया हमारे पास, राइट। अगर मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 0। अब ये काउंट है क्या, काउंट तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे एरर देगा। दैट मीन्स कैन आई से दैट कि जब मैं इस पोजीशन पे हूँ, व्हेन आई एम हियर, तब तक मैंने इस वर्ड को देखा ही नहीं है। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ भाई अभी तक ना यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है। अगर मैं बोलूँगा ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, दिस इज सेकेंड इंस्ट्रक्शन, दिस इज थर्ड इंस्ट्रक्शन, दिस इज माई फोर्थ इंस्ट्रक्शन। गेटिंग दिस पॉइंट। यहाँ से हम चलेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, दैट मीन्स ए एक मेमोरी लोकेशन बन जाएगी जिसमें वर्ड स्टोर होगा। अब मैं बोल रहा हूँ काउंट की वैल्यू 0 है, क्यों? क्योंकि मैंने तो अभी काउंट ही नहीं किया है इसमें से कुछ, राइट। तभी तो इसकी वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ फॉर आई इन ए। अब हम क्या करेंगे, इस ए के ऊपर ना ट्रैवल करेंगे, इस ए के ऊपर ट्रैवल करेंगे अब, राइट, एक एक करके। सो फिर यहाँ पे बोल रहा हूँ फॉर आई इन ए गो टू द इंडेक्स नंबर 0, जहाँ वो भी वैल्यू वहाँ पे है वो बता दो। इसने बोला आई पे W है। अब हमें एक करेक्टर मिल गया, अब हमें एक करेक्टर मिल गया, तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज लाइक दिस। ये ऐसा बन जाएगा काउंट इक्वल टू, काउंट की वैल्यू इनिशियली क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 हम रखेंगे, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। दैट मीन्स काउंट की वैल्यू क्या होगी अब 1। क्या हम बोल सकते हैं एक करेक्टर आ गया? यस, राइट। तो यहाँ पे मैं एक काउंट बनाऊंगा, लेट्स टेक सम डिफरेंट कलर। यहाँ पे आई विल बी मेकिंग वन मेमोरी लोकेशन बाय द नेम काउंट, राइट। इनिशियली काउंट की वैल्यू क्या है 0, ओके। जब भी हमने इसको 0 प्लस 1 कर दिया, अब काउंट की वैल्यू क्या है, नॉट है 0, नाउ काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। गेटिंग दिस पॉइंट। अब क्या करेंगे हम, सेम थिंग, हम यहाँ पे काउंट से कहाँ जाएंगे, फिर से यहाँ जाएंगे वापस। क्या इस W के साथ हमें कुछ करना है? नहीं करना है ना, हमें क्या चाहिए, हमें तो काउंट चाहिए, राइट। जब हम दूसरी बार यहाँ पे आया तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी O, एग्जैक्टली आई की वैल्यू क्या हो जाएगी O। गेटिंग दिस पॉइंट। अब हमें क्या मिल गया, दूसरा कैरेक्टर। हम क्या बोलेंगे, काउंट प्लस इक्वल टू 1। व्हाट्स माई काउंट वैल्यू नाउ, काउंट की वैल्यू क्या है, इधर जाओ इसमें देख लो काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू 1 है, राइट। 1 प्लस हम क्या करेंगे 1, तो अब काउंट क्या बन गया हमारा 2। हमारा काउंट क्या बन गया अब 2। आ गए हमारे पास दो कैरेक्टर्स, राइट। फिर से मैं जाऊंगा यहाँ से वापस, क्योंकि अभी तो ये ख़त्म नहीं हुआ, जब तक ना ख़त्म हो जाएगा तब तक ये चले जाएगा, राइट। जब तीसरी बार आ गए तो अब ये क्या देगा आपको R, राइट। दैट मीन्स आई में क्या है अब R है, राइट। आ गया आपका तीसरा कैरेक्टर, तो क्या करोगे, ये ऑपरेशन करोगे ना, फोर्थ वन ऑपरेशन क्या बोल रहा है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। अब मेरे काउंट में क्या वैल्यू पड़ा है 2 पड़ा है, 2 पड़ा है, प्लस क्या करेंगे 1। दैट मीन्स ये क्या बन गया 3, और इसको 3 को कहाँ पे स्टोर करें, काउंट में। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे अब 2 से बन जाएगा ये 3। गेटिंग दिस पॉइंट, ये बन जाएगा 3, राइट। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, सेम थिंग। अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से फिर से वापस जाओगे, पिछला तो R लिया था, अब नेक्स्ट आई टेस्ट में क्या लेंगे L। इस L के साथ हमें कुछ करना है नहीं, हमें क्या कैलकुलेट करना है काउंट, लेकिन हमें क्या मिल गया फोर्थ कैरेक्टर। तो फोर्थ कैरेक्टर के लिए हम काउंट करने के लिए क्या करेंगे, काउंट प्लस इक्वल टू 1। दैट मीन्स काउंट इज मेरा अभी 3 है, काउंट मेरे पास 3 है, प्लस क्या करेंगे 1, सो इट विल बिकम 4। 4 को कहाँ पे स्टोर करेंगे काउंट में। दैट मीन्स नाउ दिस काउंट विल हैव ए 4 वैल्यू, राइट। दिस काउंट विल हैव 4 एज ए वैल्यू। गेटिंग दिस पॉइंट। फिर क्या जाओगे, फिर से वापस जाओगे काउंट पे, एंड यहाँ पे अब आई की वैल्यू क्या बन जाएगी D, राइट। पिछला लिया था L, अब क्या लेंगे D, ओके D लेंगे। फिर क्या करेंगे, काउंट प्लस इक्वल टू 1। अब मेरी काउंट की वैल्यू क्या थी प्रीवियसली 4, प्लस 1 क्या बन गया 5, एंड अब इस 5 को यहाँ पे स्टोर करोगे, राइट। सो यहाँ से फिर से वापस आ जाओगे, अब यहाँ पे चेक करोगे कोई कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या रुक जाओगे। अब हमें मिल गया हमारा काउंट, और इस काउंट को हम क्या करेंगे प्रिंट। दैट मीन्स हियर अब हम समझें ये ऐसे लिखते हैं, राइट। सो व्हाट विल बी राइटिंग हियर इज समथिंग लाइक दिस। लेट्स से हम बोलेंगे A इज इक्वल टू वर्ड, राइट। A मेरा वर्ड है, राइट। सो व्हाट सेकंड थिंग हमें क्या करना है, काउंट इक्वल टू 0। इनिशियली हम काउंट की वैल्यू 0 रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें अभी इस वर्ड के ऊपर ट्रैवल ही नहीं किया है। फिर हम क्या करेंगे, फॉर आई इन वर्ड, सॉरी फॉर आई इन ए, हम बोले कि ए के ऊपर आई ट्रेड करो, ए के ऊपर आई ट्रेड करो, ए में क्या है वर्ल्ड में, एक एक करके आई ट्रेड करो। उसके बाद क्या करोगे, काउंट प्लस इक्वल टू 1, राइट। यहाँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, काउंट
equal to count plus 1, right? You can write it like this as well, right? उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये सारा कुछ कैलकुलेट करेगा, जब ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद फिर हम फॉर लूप जब ख़त्म होगा उसके बाद हम बोलेंगे द लेंथ ऑफ द वर्ड इज़ कितना है, वो कहाँ पे स्टोर रखा है हमने, काउंट में। यहाँ पे मैं उसका नाम बोलूँगा काउंट, राइट। नाउ इफ़ आगे मैं इसको रन करूँगा, क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ऑफ अ वर्ड इज़ 5, राइट। अब ये वर्ड के लिए बोल रहे हैं। नाउ अगर यूज़र मुझे कोई भी वर्ड दे रहा है तो उसके लिए व्हाट आई विल बी डूइंग हियर इज आई विल बी टेकिंग द इनपुट एंड हियर आई विल बी सेइंग एंटर द वर्ड, या सेंटेंस वो बोल दे, कुछ भी बोल दे, एंटर द वर्ड स्लैश सेंटेंस। अगर उसकी लेंथ निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं, राइट, बस विद द 4 lines of code, getting this thing. Now if I will be executing here, I will say here hi my name. अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, यू आर गेटिंग 10। फिर से एग्जीक्यूट कर लो, प्रोग्राम को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल से पाइथन, इन पाइथन वी आर हैविंग 6 वर्ड, राइट। अगेन मैं अगर रन करूँगा, मैं लिखूँगा मैकबुक, यहाँ पे मैकबुक में 7 है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दो एंड आई विल हेल्प यू इन दैट एज वेल।